Hello, aspirants. Good morning, good afternoon, good evening. Before going to start the actual session, I would like to say something. It's my suggestion for everyone. In order to maximize the output and make this session like a real interview session. So, when questions slide arrive in front of you, first pause the video and try to answer them within 2 minutes or minute, and after that listen my answer. One second thing is, as you know, syllabus of botany is one of the lengthiest syllabus, and therefore I divide this session of video guidance into five different sessions. So in all five sessions I will cover entire botany holistically, and I assure you, if you continued and watch all the five sessions, it will definitely play a key role in your interview in terms of answering the board questions and fetching good marks. So when you are answering the questions, my one more suggestion is also leave some clue or points or words in your answer, mention in your answer, so that enforce the board to ask, or that again the attention of the boards. So from where board going to ask the questions, from that point what you left in your answer or what you mention in your answer. If possible, in your friend circle together you should discuss, because what happens actually in practical life, you feel more comfortable in your friend circle of answering questions of each other. So also arrange some session in your group. One more thing, if possible also you join different institutions, okay, from cross questioning or cross interview, so that will boost your confidence. And last thing is subscribe the channel to get early notification about the next video. And my team also working on GS, and in that 10 to 12 video we shall upload, okay, before your interview, and that are basically the modular guidance programs. So in that separate video on GS part, so we will made and we will upload on, okay, and whatever your feedback, so you should write in the comment box of the YouTube, and whatever the further enhancement and better support, so we will definitely look on that. So let's start answering the questions. Okay, so the first question is, just read it, and what I suggest you should just follow it. The first question is, between an annual and perennial plant, which one has shorter juvenile phase? Between an annual and perennial plant, which one has a shorter juvenile phase? अच्छा, कई बच्चे मुझे इस प्रोग्राम को हिंदी में भी कह रहे थे करने के लिए, तो जिनका मीडियम अगर हिंदी है तो वो भी देख सकते हो, और चूँकि ये साइंस है तो साइंस में हिंदी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर आंसर आप समझ ज़रूर सकते हो, इसलिए आप लोग भी इसको देख सकते हो और आप भी आंसर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बट ठीक है, तो नाउ रीड इट। और एक चीज़ और याद रखना, इंटरव्यू क्या होता है, टोटल एक्टिंग होता है। आप कितना अच्छे से एक्ट करते हो, कितने अच्छे से क्वेश्चन को आर्टिकुलेट करते हो, और कितने कम वर्ड में आप आंसर को करते हो, सो दैट विल ओके इन्फोर्स द बोर्ड टू कंटिन्यू योर इंटरव्यू सेशन फॉर लॉन्गर पीरियड। जिसका इंटरव्यू ज़्यादा लंबा होता है, हम लोग ये मानते हैं कि उनका इंटरव्यू तकरीबन कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो, इस क्वेश्चन का आप लोग शायद आंसर आप कर लिए होंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, तो जो लोग आंसर नहीं कर पाए हो, जनरली क्या होगा कि उस टाइम फ्रेम में आंसर करना ये बड़ी बात हो जाती है, और मोस्टली होता ये है कि भाई बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप जब आंसर करो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो कि सर, एनुअल प्लांट हैज़ शॉर्टर जुवेनाइल फेज सिंस इट हैज़ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन ए ईयर, while perennial plant has a longer lifespan of several years. Okay, take the next question. So read it and pause it
answer it, and after that I will answer you. So okay, so answer of this question is basically what? Give the reason as to why cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organism. So you answer in that way, sir, in multicellular organism, cell division does not divide the body into organism as in unicellular organism, but instead adds to the number of cells to the body so as to increase its size. क्लियर? ये क्लियर हो गया बातें? वन इज द डिवीजन होता है, ठीक है ना? तो भाई जिस अगर हमारे जो बॉडी में जो सेल्स हैं, दीज आर सोमेटिक सेल्स, तो इसमें जो डिवीजन हो रहा है इससे क्या हो रहा है? हमारे बॉडी का साइज बढ़ रहा है, पर इससे कोई हमारे से कोई क्रिएट तो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे कुछ व्हाट तो यहाँ पे एक सवाल ऐड कर सकता है वो, तो क्लोन क्या है फिर? इन क्लोन तो हम लेते हैं, तो आप कह सकते हैं क्लोन जो हम वो नेचुरली नहीं बनता है, वो उसे हम एक मीडियम में हम उसको तैयार करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है भाई, आइदर सेल फ्यूजन और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के थ्रू हम तैयार करते हैं। तो क्लोन क्या है? वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अगर वो देख भाई बैक्टीरिया में क्या है, तो बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है। तो आप अपने आंसर में थोड़ा सा क्लियर रहोगे, ज़्यादा डिबेट नहीं करोगे आप, चूँकि लगता है। लेकिन अगर आप राइट हो, स्टैंड सही है, आप श्योर हो, तो आप आंसर पे डिबेट कर सकते हो, बिकॉज समटाइम दे इन्फोर्स यू टू डू द डिबेट। सो इन ऑर्डर टू नो अबाउट योर कॉन्फिडेंस इन दैट आंसर, सो ओके, सो दे वांट टू चेक अबाउट कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है और आप उस आंसर के प्रति कितना श्योर हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस? इसका आंसर जब आप करो, ठीक है, तो थोड़ा सा जिनका बोटनी बेसिक ठीक होगा तो वो आंसर कर जाएंगे, क्योंकि इसमें इस पूरे सेशन में हमने जो पूरा जो इंटायर सेशन हमने दो भाग में बांट दिया है आज के सेशन को। इसमें शुरुआती जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होगा, थोड़ा सा कम्फर्टली होगा, बोटनी पार्ट से होगा। जो नेक्स्ट पे अभी क्वेश्चन का आएगा तो वहाँ पे कैसे बोर्ड आपको टॉर्चर करता है हम वहाँ भी आते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो पहले से समझते हैं। तो व्हेन यू आर आंसरिंग इट, तो यहाँ कैसे स्टार्ट करोगे? तो स्टार्ट इन दैट वे, सर नो, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ जाइगोट, एन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो develop directly from a cell of nucellus or integuments or eggs or even synergids. Therefore, neither pollination nor fertilization is required. Clear? So, in that way, you should answer it. Take the next question. How are allele of particular gene differ from each other? Explain its significance. अब मान लो allele आपको याद है, ठीक है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है क्या allele होता है, ठीक है। तो आप जिन लोगों को अगर नहीं पता है कि व्हाट इज़ द जीन एंड व्हाट इज़ द एलील, तो उनको एटलीस्ट उसको आंसर करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, तो आंसर कैसे करोगे इसका? आंसर आपको स्टडी करना है, तो आपके दिमाग में जो भी आर्टिकुलेट करना है आप खुद से कर लिया करो, एंड देन आंसर कि सर एलील ऑफ ए जीन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन सम न्यूक्लियोटाइड ड्यू टू म्यूटेशनल चेंजेस, एज a result of this they produce different trait, and because of this, okay, the variation or variability causes, okay, because this is their significance. Clear na? Take the next question. How does a mutagen induce mutation? Clear है ना कि यहाँ पे जस्ट अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि एलील ऑफ ए जीन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन सम न्यूक्लियोटाइड ड्यू टू म्यूटेशनल चेंजेस। तो अब यहाँ से आपने एक पॉइंट दिया कि म्यूटेशनल चेंजेस, सो दे मे आस्क अबाउट हाउ डज म्यूटाजेन इंड्यूस म्यूटेशन। तो म्यूटाजेन, यू आर फैमिलियर विद द म्यूटाजेन, व्हाट इज म्यूटाजेन? अ म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। क्लियर है ना? जो एजेंट म्यूटेशन को कॉज करता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटाजेन। म्यूटाजेन में भी वायरस हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स हो सकता है, ठीक, लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है म्यूटाजेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पे, हाउ डज म्यूटाजेन इंड्यूस म्यूटेशन? So your answer is, sir, a mutagen changes nucleotide sequence of a gene by either deletion or addition of nucleotides, or there are so many other different means. Okay.
एंड ओवर इट। उसके बाद आप आंसर ज़्यादा मत दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड देते हो फिर वहाँ पे वो लंबा सवाल करने लगेगा। एडिशन डेरिशन आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। अब आप कहो कि मिथाइलेशन या एल्काइलेशन, तो फिर वो लगेगा एल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में पूछने के लिए। तो क्वेश्चन में आप एक कभी कभी आप जो पॉइंट्स देते हो कुछ को छुपा भी लेना है, कुछ को बता भी देना है। जहाँ पे आप कंफर्ट हो उसको बता दो, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आप फंस जाओगे तो उसको छुपा लो। ये एक्ट आपको आना चाहिए, और ये एक्ट आएगा धीमे धीमे। इसलिए आप लोग पूरे 5 जो अभी वीडियो बनेंगे बोटनी पे, उस 5 को प्रॉपर देखना। हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, 4-5 घंटा आप लोग को सुनना पड़ जाए, कोई बात नहीं, सिलेक्शन से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा तो पे करना चाहिए ना टाइम, ठीक है। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफ़ी अच्छा सेशन हो जाएगा आपके लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ ईजियर टू प्लांट सेल इन विट्रो कंपेयर टू द एनिमल सेल, वाई। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ यहाँ मिटा हुआ है, उसको आप लोग ठीक करें ना। इट इज़ ईजियर टू कल्चर प्लांट सेल इन विट्रो कंपेयर टू एनिमल सेल्स, वाई। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा टाइप में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सही कर लेना। अब मान लो हमने कहा कि कल्चर जो है प्लांट सेल का इन विट्रो में जो करना है वो एनिमल सेल के कंपेरिजन में इजी है। कैसे? तो आंसर अगर आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग अपना आंसर दो, अदरवाइज इसका आंसर ऐसे कर दो कि सर इट इज़ बिकॉज प्लांट हैव मोर टोटीपोटेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स and can grow for unlimited generation. Animal cells are differentiated, and in culture they stop growing after few generation and die ultimately. So this is the answer actually. आप समझ रहे हो, मेरिस्टेमेटिक सेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है? ये डिवाइडिंग सेल्स होता है। तो जो भी प्लांट सेल है टिल they have a power of division, so they are in meristematic state. The moment when they loses the power of division, then they transform into the totipotent. और अभी तो हम लोग जो है, अभी जो रिसर्च है हमारा, उसमें आप लोग देखे सुने होंगे, जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं, सॉरी जो परमानेंट सेल्स हैं, अगर उससे हम आप लोग पढ़े होगे या अगर स्टेम सेल, या अगर आप लोग हार्मोन्स पढ़े होंगे तो आपको किसी ध्यान में हो सकता है वहाँ से सवाल पूछते कि विच हार्मोन ट्रांसफॉर्म परमानेंट सेल इनटू वंस अगेन इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो एक हार्मोन्स होता है ट्रॉमेटिक हार्मोन्स। तो उस ट्रॉमेटिक हार्मोन्स जिस सेल को ट्रॉमा हुआ है उस सेल से रिलीज होता है, और वो हार्मोन्स कभी कभी परमानेंट को, उसमें एक कैपेसिटी है कि वो परमानेंट को भी मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर देता है। और तो हो सकता है यहाँ पे आपसे सवाल पूछ दे व्हाट इज टोटीपोटेंट सेल्स। तो टोटीपोटेंट का मतलब अ सेल विच हैज़ इमेंस एबिलिटी टू गिव राइज एनी काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स। देन दे मे आस्क हाउ टोटीपोटेंट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो कह सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर टोटीपोटेंट सेल्स बट नॉट ऑल मेरिस्टेम आर टोटीपोटेंट। ऑफकोर्स, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर वन ऑफ द टोटीपोटेंट सेल हम कह सकते हैं, पर ऑल ठीक है, बट तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको क्लियर रखना है। अब है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं यहाँ पे, चूँकि वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं इस पर हम लोग। व्हाट इज़ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, व्हाट बेनिफिट डू दे ऑफर टू द सोसाइटी। अब बायो फोर्टिफाइड क्रॉप क्या है और इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, तो ये आपको आना चाहिए। अगर तो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग कि सर any crops that are enriched in fat, protein, vitamins, minerals, all are called basically the bio-fortified crops. And for example, there is a carrot, there is a spinach, there is tomato, there is a mustard, and all these things are in society. So in that way, the bio-fortified crop help in overcoming the basically the malnutrition problems. So in that way, we should answer it. तो जो malnutrition को अगर कम करने में हेल्प करता है तो सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। तो अगर मेल न्यूट्रिशन वर्ड यूज़ करते हो तो हो सकता है वहाँ पूछो कि व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन इज मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन इज मेल न्यूट्रिशन।
तो आप ये कह सकते हो कि ओवर न्यूट्रिशन भी क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, और अंडर न्यूट्रिशन भी मेल न्यूट्रिशन है। तो फिर ठीक है, तो व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन? तो यहाँ पे क्या होगा कि सर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हम कुछ भी लेते हैं, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, इफ़ वन टेक इन अप्रोप्रिएट percentage, so that are called that cause malnutrition। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज बायोरिएक्टर? व्हाट इज बायोरिएक्टर? तो इसको आप लोग अगर ये सवाल आता है, या यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकता है कि व्हाट इज बायोफर्मेंटर। ठीक है, हो सकता है वो वर्ड क्या यूज़ करें, तो आप इसके लिए तैयार रहना। इफ दे आस्क अबाउट व्हाट इज बायोरिएक्टर एंड व्हाट इज बायोफर्मेंटर, then you should answer in that way. Bioreactor is a large size biofermenter, or biofermenter is a large size bioreactor in which in a controlled condition the microbial activity is carried on for maximizing the product development of industrial values such as the antibiotics, alcohols or alcoholic beverage and other bioactive molecules. सो दिस इज़ योर आंसर। आंसर में कई दफ़ा क्या होगा कि आपको घबराहट भी होगा, लेकिन आपका जो अल्टीमेट जो असेंस है आंसर का, अगर वो सही है तो नीड नॉट टू बी पैनिक नहीं होना है। और आप जो आंसर करते हो उसमें आप टाइम ले सकते हो। इनिशियल आप 30 सेकंड का टाइम लो, फिर आप आंसर करो। ठीक है, और अगर लगता है तो आप टाइम कैसे लें, तो जब बोर्ड सवाल पूछ लेता है, आप समझने का प्रयास किए 10 सेकंड में, जब नहीं समझ पाए फिर से अगेन आस्क कि सर सॉरी सर पार्डन, और अब तब फिर बोर्ड एक बार फिर से सवाल पूछेगा, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ व्यस्त होता है, आपस में बात भी करते होता है। और इंटरव्यू में आप जब भी आंसर करो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सामने बैठा हुआ है, जिसने आपसे सवाल किया है, तो आप उनको आंसर तो कर ही रहे हो, साथ के जो 4 या 5 या 3 जो लोग रहे होंगे वहाँ पे, तो आप उनके साथ भी अपना चेहरे को घुमाते रहो। ठीक है, एंड डोंट मूव योर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ पाँव को ज़्यादा हिलाओ मत। ठीक है, रिलैक्स रहो। आंसर में दो ही बात होगा कि आप आंसर दे रहे हो, और सम टाइम इफ पॉसिबल अंडर एस्टिमेट द बोर्ड्स, बिकॉज बोर्ड मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि वो फैमिलियर उन क्वेश्चन से होते हैं दो जो आर इन द न्यूज़, जो न्यूज़ में नहीं उससे नहीं होगा। अब मान लो चलो न्यूज़ से एक सवाल यहाँ पे ध्यान आ रहा है मुझे कि मान लो अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पे एक सवाल है, चलो अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं। इन दिस पैंडेमिक कोरोना पीरियड, ओके, RT-PCR इज न्यूज, व्हाट इज इट, व्हाट इज PCR? ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ से आपके ऊपर बम्बार्ड करना शुरू करेगा बोर्ड। अगर आपने उतने सारे आंसर को दिया है तो आप बोर्ड के ईगो को ठेस पहुँचाए हो आप। ठीक है, आंसर देना तो अच्छी बात है, पर सारे का आंसर देना ये भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब आपके ऊपर बम्बार्ड होने वाला है, और यहाँ से अब आपको संभाल कर आंसर देना है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस पैंडेमिक कोरोना पीरियड RT-PCR इज न्यूज, व्हाट इज इट? अब मैंने ऐसा मैं यहाँ पे करंट का जो हमारे वीडियो है करीबन वीडियो मैं रेगुलर बना रहा हूँ, और आप पूरे जुलाई महीने का करंट देख सकते हो, उस पर है। और आगे अगस्त सितंबर जो भी आएगा उसमें कंटिन्यू रहेगा, डे बाय डे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप सारे अपडेट ले सकते हो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वट एवर द टॉपिक आर इन न्यूज़, सो मोस्ट ऑफ टाइम बोर्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट, बिकॉज दे आर नॉट बेसिकली द राइटर और द एकेडमिक टीचर्स। और एक अच्छा बात ये भी है कि जो एकेडमिक भी टीचर्स होंगे वो 6 महीने से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि कोरोना के कारण सब बैठे हुए सब भूल गए होंगे। ठीक है, जैसे आप लोग भूल चुके होंगे बहुत सारी चीज़ को, आप लोग भी तो ठीक है, आप थोड़ा सा तलाश रहे हो। चलो RT-PCR पूछता है तो आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, 1 मिनट मेरा पूरा ये है, इसको पढ़ लेना आप लोग, अब पूरा वीडियो इस पर है। अब पूछता है कि व्हाट इज़ PCR? तो RT-PCR क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ PCR, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर PCR क्या है एंड व्हाट आर, ठीक है ना, एंड व्हाट आर इट्स यूज है। तो कह सकते हो कि सर PCR इज बेसिकली टेक्निक्स so that are used for detection of pathogens or diagnosis of specific mutations or DNA fingerprinting in parental diagnosis, in diagnosis of plant pathogens. Okay, you have so many answer about that. कई सारे टेक्निक हैं जहाँ पर हम यूज करते हैं, और ये एक ज़बरदस्त पॉइंट होगा आपका आंसर का कि आप बोर्ड को 4, 5, 6, 7 चीज़ें जो आपको आ रहा है, जो चूँकि आपने जेनेटिक्स को पढ़ा हुआ है,
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ भी दे दो कि सर जीन थेरेपी में इसका यूज़ होता है, पीसीआर का हम लोग यूज़ करते हैं डायग्नोसिस या प्लांट में, ठीक है। अब वो ये नहीं पूछेगा कि एक पीसीआर में हम करते क्या हैं। अगर ये सवाल पूछा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन द पीसीआर, ठीक है। भाई डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंसी है, तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंसी मतलब क्या। अब जैसे मान लो अभी हम लोग कोरोना के वायरस का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही होगा, वो ज़्यादा डेप्थ में अगर नहीं जाता, या आपने बहुत सारा टॉपिक दे सुझा दिया कि सर पीसीआर यूजिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर यूजिन पैलेंटोलॉजी, पीसीआर यूजिन जीन थेरेपी, पीसीआर यूजिन डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजेंस, पीसीआर यूजिन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्शंस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो फिर आप अपने अगर नेट में बोर्ड को फिर से ट्रैप कर रहे हो, तो हो सकता है वो डाइवर्ट करके सवाल पूछे कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या हो सकता है सवाल पूछे आपसे कि हाउ वी यूज इट इन पेरेंटल डायग्नोसिस, तो फिर आपको आंसर वहाँ चला जाएगा। तो आप जो भी क्लू देते हो बोर्ड को, तो आप उस क्लू पे अपने तैयारी करके आप क्लू देना, नहीं तो मत देना। अब मान लो यहाँ पे 13 सवाल है, अगर आपसे ये बोर्ड पूछता है फिर आप हंस सकते हो, और वो 13 सवाल ये है कि वाइल डूइंग पीसीआर, बिकॉज इफ ओके वाइल डूइंग पीसीआर डीनेचुरेशन इज मिस्ड, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन अगर आता है, इट मीन्स कि बोर्ड में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, सो दे आर द जेन्युइन स्कॉलर, ओके, एंड दे नो, और या तो कोई ना कोई अच्छे लेक्चरर हैं, उनको पता है कि हाँ इसके अंदर क्या होता है। अब यहाँ पे आप दो पे आता है तो आंसर दो, अगर नहीं आता है तो स्किप करो, सरेंडर कर दो, सॉरी सर, ठीक है ना। अब सॉरी सर कर दोगे तो आपका आंसर ओवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सवाल पूछेगा। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, झूठ नहीं बोलोगे ऐसे सवालों पे, ठीक है। ऐसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ डीनेचुरेशन स्टेप द 2 DNA strands will not open, clear, इन द एब्सेंस ऑफ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है कि मैं डीएनए का जब एक्सपोजर, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड है, जब उसका एक्सपोजर लाइट से होगा तो उसका जो दोनों स्ट्रैंड्स क्या होता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो दिस सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। सो इन द एब्सेंस ऑफ डीनेचुरेशन स्टेप द 2 DNA strand will not open and primer will not basically anneals to the template and no extension of DNA would occur, therefore there will be no amplifications। तो पीसीआर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो एकदम से शार्प आंसर होना चाहिए। बात अभी चूँकि कोरोना का चल रहा है, तो मे दे आस्क अबाउट वेरियस अदर टेस्ट, वेरियस अदर वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन हो गया, या mRNA वैक्सीन है तो ये क्या है, या आपसे एंटीजन टेस्ट क्या होता है, या एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, या RT-PCR टेस्ट क्या है। तो आपका काम है कि इसको भी तैयारी करना। मैंने एक अलग से 2 वीडियो बना दिया हो, एक वैक्सीन पे और एक टेस्ट पे, आप उसको देख लेना, ठीक है। चैनल पे जा करके आप प्रॉपर इसको देख लेना वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे हैं व्हाट इज़, तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। अगर मान लो आप इसका आंसर करते हो कि सर एंटीबायोटिक्स इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ मेडिसिन्स एंड सो दैट वी यूज इट अगेंस्ट द बैक्टीरिया और द फंगस, तो आप मान लो आपने जब आंसर दे दिया इसका, तो हो सकता है वो सवाल पूछे कि व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्योंकि इस सवाल पे एक बैठा हुआ है जो पूछा, हो सकता है दूसरा कोई वहाँ से पूछे व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, या सेम क्वेश्चन से रिपीट कर दे। तो एक क्वेश्चन के बाद चूँकि आप आंसर दिए हो तो दूसरा आंसर क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ पे, और कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब मान लो इसका आंसर दोगे, देन दे आस्क व्हाई एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। तो आप इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप उसी किसी सेम पॉइंट पे क्या बन सकते हैं और क्या अगला क्वेश्चन करेगा, तो ये माइंडसेट हमें रीड करने की जरूरत होती है। उसके लिए हमें तैयारी भी रहना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो आंसर क्या करोगे, सर ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज द वन विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर। कोई पूछ, अगर मान लो यहाँ पे पूछ दे गिव द एग्जाम्पल्स, तो नाम ले लेना, क्लोरोएम्फेनिकॉल्स। अगर सवाल ये पूछता है कि वाई एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अब मान लो आप आंसर इसका जान रहे हो तो आंसर करोगे, नहीं जान रहे तो सॉरी करके निकल जाना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि तीनों सवाल का 2 आंसर, अगर इसको क्यूट करना है तो आपका इंटरव्यू में कहीं कुछ ख़राब नहीं जा रहा है, दे नो कि यू आर नोइंग समथिंग एंड समथिंग मिसिंग, पर वो कंसीडर कर लेगा, वो नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है।
अब एक एंटीबायोटिक, तो फिर वायरल यह भी सवाल पूछ सकता है कि अगर ये वायरस के अगेंस्ट हम लोग फिर क्या देते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे कि वायरस के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीवायरल मेडिसिन को वर्क करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, वाई वी यूज इंडोन्यूक्लियस नॉट एक्सोन्यूक्लियस वाइल प्रोड्यूसिंग ए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब आरडीटी पढ़े होंगे आप लोग, बड़ा सा ये कोर क्वेश्चन वहाँ का है, क्योंकि आरडीटी में हम लोग क्या लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को लेते हैं। और तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इंडोन्यूक्लियस को क्यों लेते हैं, एक्सोन्यूक्लियस को क्यों नहीं लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जब आंसर करोगे तो सिंपल सा छोटा आंसर यहाँ पे करना है कि सर, चूँकि जब बड़ा आंसर करोगे तो फंस जाओगे। आप सिंपल ये करना है सर, बिकॉज एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द फ्री एंड्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स विथ स्टिकी एंड्स एंड फॉर आरडीटी वी नीड स्टिकी एंड्स and it is only produced by the endonuclease and that's why we are taking the endonuclease okay as a molecular seizures। क्लियर, इतना आंसर रखना, इससे ज़्यादा मत पूछ बोलना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड हाइब्रिड प्लांट वेराइटी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड हाइब्रिड प्लांट वेराइटी। एक तो ये बनता है, और या तो हो सकता है आपको आरडीटी पे ही वो रह करके 2-3 सवाल और करे। जैसे मान लो कि वहाँ पे सवाल कर सकता है कि उसमें वेक्टर क्या लेते हैं आरडीटी में, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई प्लाज्मिड को हम लेते हैं, कॉस्मिड है, फाज्मिड है, लेम्डा फेज है, देयर आर सो मेनी वेक्टर्स। या ये सवाल पूछे कि भाई आरडीटी में जो क्या उसमें उसका यूज़ हम लोग जीन क्लोनिंग के लिए करते हैं, तो कह सकते हैं करते हैं। ठीक है, या उसका एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, या अभी जैसे मान लो क्रिस्पर कैस जीन है, ठीक है ना, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, चर्चा में है, तो क्रिस्पर कैस पे सवाल पूछ सकता है। मैं आगे इस पर एक वीडियो बना के बताऊंगा आगे। ठीक है, अगले वीडियो में सब होगा। चलो इस पर सवाल का आंसर देते हैं, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड हाइब्रिड प्लांट वेराइटी। ये आंसर, ये बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करोगे। अब आपके ऊपर क्वेश्चंस क्या ना हल के आने शुरू हो गए, इसका मतलब समझ लेना। और आपका बोर्ड का टाइम अब ओवर हो चुका है, बोर्ड आपसे बोर हो चुका है। अब आप जाओ, अब आपने अच्छा आंसर किया है, ठीक है ना, अब आप जाओ, ये बोर्ड का आखिरी क्वेश्चन चलेगा अब। ठीक है, अगर मान लो ये सवाल पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर जानते हो कर लेना, अदरवाइज 2 लाइन में बता देता हूँ। सर जीएमओ कंप्लीटेड, जीएमओ कंप्लीट, GMO does not require crossing between different organism, while hybrid plant okay is formed by the crossing। एक तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर मान लो क्वेश्चन है या आपके पास जो भी सारा पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करके अपना आंसर को पूरा कर सकते हो ये। ठीक है, चलिए एक सवाल और देते हैं, व्हाट इज, जो GMO की बात हुआ है तो GE से पूछ लेगा कि व्हाट इज GEAC एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो जो GMO पढ़ा होगा या हाइब्रिड पढ़ा होगा तो GEAC से फैमिलियर जरूर होगा। ठीक है, अगर आप याद आ रहा है तो ठीक है, कोई करंट कोई केस है, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा कर सकते हो। और अगर नहीं तो अगर जान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जान तो कोई बात नहीं। तो आप आंसर कर सकते हो कि सर GEAC बेसिकली है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ GM research, inspect the safety of use of GMO and other similar product। ठीक है, सो इट्स बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट और आइटम्स। इतना करके आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस सेशन में हमने जितना सवाल लिया, आप चूँकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं चाहता था कि छोटे छोटे ही वीडियो बने और आपका अटेंशन बना रहे, तो आप आंसर करोगे, अपनी तैयारी करोगे। और अभी जो अगला जो इस पर बोटनी का जो 5 वीडियो बनना है उस पर आप लोग प्रॉपर उसको सुनते रहोगे। ठीक है, और जो भी कमेंट लिखना होगा आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखोगे, जो क्वेश्चंस हैं, जो सजेशन है लिखोगे, ताकि उस क्वेश्चंस पे हम वीडियो बना करके आप लोगों को दे सकें। ठीक है, चलिए थैंक यू बाय।